बीइंग अली जफर's यंगर ब्रदर, और आपसे तो बात करते करते मैं एक सेकंड के लिए भूल भी जाता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अली भाई से बात नहीं कर रहा, बिकॉज माशाल्लाह आपकी शक्लें इतनी मिलती हैं और बात करने का भी तरीका। तो ये जो फर्स्ट ब्रेक था, व्हाई बॉलीवुड, व्हाई नॉट डू समथिंग विद इन पाकिस्तान इवन एट दैट पॉइंट? और हमेशा से जो इंक्लिनेशन थी आपकी, was it towards acting always, because you're a brilliant musician as well? So क्या चल रहा था growing up? What was it like? What did Daniel want to be? I think when puberty hit me, that's when I thought, okay, you know what, I can probably come in front of the camera and act. अच्छा, Yeah, लेकिन back of the mind था, but I had never, been as sure of it as I was, कि यार मैंने music करना है. So music from the get-go, I was 100% sure about. कि यार this is something I want to do for sure. और music बनाना शुरू हो गया था, सब कुछ हो गया था. ये तो it wasn't about the fact कि why Bollywood, why not Pakistani, all of that stuff. Shanu जो the casting director for YRF, Yash Raj की जो है, very sweet woman, very good friend of mine. She very actively made an effort. She reached out to my brother. कि my brother posted a picture of mine. तो उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था कि एक्टिंग करते हैं ये. तो my brother was like, he's acting all the time. जो कि मैं करता भी रहता था, घर वालों के सामने झूठ फूट बोलता रहता था सारा. तो खैर, तो वो she reached out to me. She was like, I'm very interested in you. You have a very interesting face. तो मुझे आप ऑडिशन भेजें, सब कुछ करें. The same thing if anyone had done in Pakistan, I would have gone for it. So it wasn't about the fact कि मुझे Bollywood जाना है. wasn't a conscious decision. It wasn't a conscious decision. It was just मेरे जो whatever came my way, I went for it. और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता, और उस टाइम पे भी मैं 100% श्योर नहीं था कि हाँ this is something I am all in for. I knew कि हाँ I'd want to do it, but then because it was Yash Raj and it was such a big name, I got so excited. तो वो I put everything aside and I was just like, okay, I'm going to follow the lead. आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ से वापस भी आ गया, तो क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिल गया था कि हाथ में एक चीज़ दे दी किसी ने, so then I got conscious about the decisions I had to make. So I did get offered some Pakistani films as well, but I just wasn't sure about them. कि I wanted to make sure कि जो डेब्यू हो, एक तो ये था कि डेब्यू का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि एक तरफ पता नहीं यश राज की कहानियां चल रही थी, सुनते भी हम भी बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे कि Ali's younger brother to make a debut with Yash Raj to launch the. So I think me and my family, like everyone, we all had to separate me from this larger than life picture of me कि जी धान्याल का डेब्यू, ये धान्याल का पहला गाना, पता नहीं क्या होने लगा, पता नहीं क्या. तो मैंने कहा यार ये not just for the audience and my listeners and my viewers and my fans, even for me, ये मुझे नहीं पता क्या होगा ये. So I need to just take it easy. और अब वो frankly speaking, I personally feel वो ज़माना ख़त्म हो गया, because digitalization has changed everything so much, especially COVID वाली सारी situation ने जो आपके डिजिटल मीडियम है उसको इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि अब मेरा नहीं ख्याल डेब्यू और बिग बैंग ये कोई चीज़ है जो मुझे फील हो रहा था इवन फॉर म्यूज़िक कि मेरा पहला गाना क्या होगा, और पहले गाने से वो हम आई थिंक इसलिए पहले गाने पे इतना कॉन्सेंट्रेट करे थे बिकॉज माई ब्रदर, वो उनका छन्नो था पहला गाना, तो वो तो लाइक बूम, इट वाज अ मैसिव हिट. तो देयर वाज a constant like comparison which on a very subconscious level we kept doing, from which we had to break away कि यार नहीं छोड़ दो अब. तो ड्रामा भी करने का डिसीजन जो था वो कुछ हद तक इस तरह था कि यार I need to forget that I'm anyone's brother. I need to forget everything and I just need to do things that I like. अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं. एक तो ये है कि बिकॉज दिस ओवरवेलमिंग प्रेशर बिकॉज यूर अली जफर's ब्रदर, और जो आप ये सारी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल वुड से कि यार देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, कि इसको तो चांस मिल गया, और वो भी चांस अगर हो जाता तो वो और बड़ी बात होती यार, कि जहाँ पे पाकिस्तान में लोगों को नहीं चांस मिलता, ये तो डायरेक्ट इंडिया बॉलीवुड में भी यश राज, तो दैट्स आल्सो लाइक अ बिग डील. हाउ डू यू सी दैट एस्पेक्ट कि यार कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिविलेज देयर, राइट? और वो फिर then there is the entire conversation nepotism वाली, उसके बारे में क्या आपके तबसरा है आपका? तबसरा, I can't deny that there is privilege. Facts are facts. But the thing is, I didn't choose which family to be born in. I didn't choose what my brother was going to do.
And being very young, when I saw what I did, him being a star and all of that stuff, obviously आपको इतनी कम एज में, I was probably 9 years old I think when Channu came and it was a hit and all that stuff, and I was a kid growing up. तो मेरे घर में एक larger than life एक बंदा आ गया था एकदम, you know, from being a nobody to everyone, you know, like swarming him wherever we would go, और इतनी attention सब कुछ. तो इतनी young age में मैंने देखा, मुझे भी obviously कुछ हद तक काफ़ी कुछ fascinate किया. तो मेरे माइंड ने एक पूरा सिस्टम बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा, you know, this is something that even I would like to do. I think if you put not only an artist in this category, अगर कोई भी अपने घर में किसी भी प्रोफेशन में आप देखें, डॉक्टर कोई बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, whatever profession anyone is going for, and consequently their younger sibling or their child, if by seeing them they get inspired to also follow in their footsteps, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है. It's completely fair. कल को if I have a daughter, if I have a son, they want to step in, so obviously I'd support them. But here's the difference. The difference is I can open the door for them, but whatever they do once they step inside that room is on their own. उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. उनकी एक्टिंग मैं तो नहीं उनके अंदर घुस के कुछ निकलवा सकता ना. सो वो जो करेंगे वो फिर अपने बलबूते पे करेंगे. दूसरी चीज़ ये है कि whenever anyone steps in to the industry, it's always the fans and the people who see you and they like you and accept you that give you the power to make it as a star. If I put out songs और मेरा 1000 व्यू भी ना होता मेरे गाने पे, या 10 कमेंट भी ना होते कि यार बहुत आला लड़के तू क्या गाने बना रहा है, तो मैं ना करता म्यूजिक शायद. It's because I started getting the response that made me feel like okay, I am making my mark, and you know I do deserve this. So just because जी मेरे भाई ऑलरेडी उसमें है तो लोग समझेंगे ये तो नेपोटिज्म है तो मैं करता ही नहीं हूँ ये. That's a much bigger loss. जो बंदा किसी की भी कनेक्शन के थ्रू इस फील्ड में आगे आता है उसको it's only the fans and the listeners and the people that give them the power to succeed if they love their work, which touch wood alhamdulillah लोग पसंद कर रहे हैं काम मेरा. So you know that's where I stand on this debate. अगर कोई डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है क्या ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है आजकल. सारे जो जिनके कुछ ना कुछ रूट्स हैं इंडस्ट्री में वो यही कहते हैं कि यार कि अगर कोई लॉयर है और कोई लॉयर बनना चाहता है क्या वो बिजनेस कर रहा है, अगर एक बिजनेसमैन है उसका बेटा है ठीक है, उसने पूरी एम्पायर खड़ी की है, उसका बेटा आना चाहता है आई थिंक पहली अपॉर्चुनिटी तो वही वाली बात है जब आप अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं कि फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, तो फिर फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स फेयर अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलनी चाहिए. But then again, is it my fault that I'm in the household that I was born? इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं मिलनी चाहिए. हाँ, don't rob me off of it. I was in London. ये यश राज के बाद की बात है, 2017. I was in London. तो सबवे में मैं था और मैंने वहाँ पे अलादीन का एक पोस्टर देखा, फ्लायर था ऑडिशंस का. It was a walk-in audition. अगले दिन मेरी फ्लाइट थी. I walked in. So I gave the audition for Aladdin. ऑडिशन क्या था, गाना गाना है. तो मैं गया, अब किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ, लंदन में बैठा हुआ हूँ ठीक है. अब लोगों को नहीं पता मैं अली जफ़र का भाई हूँ, किसका भाई हूँ, क्या है. वॉक इन टू द ऑडिशन, आई सैंग अ सॉन्ग, मैं आ गया. तो मुझे अगले दिन कॉल आ गई कि आप हमें वापस चाहिए. सो वी शॉर्टलिस्ट हो गए. हाँ शॉर्टलिस्ट हो गए. सो आई वेंट बैक एंड आई हैड लाइक अ मंथ लॉन्ग रीडिंग सेशंस विद लुसिंडा साइसन जो कास्टिंग डायरेक्टर थी अलादीन की. अच्छा. लंदन में उनके साथ मेरी 1 महीना वो स्क्रिप्ट रीडिंग, कुछ सीन्स, मतलब ऑडिशंस होते गए. Came to a point where she would tell me कि so Guy Ritchie was the director for this. So it came a point where she would tell me कि गाय कह रहा है कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, बाल ये वो फलाना. तो फिर एकदम LA से कुछ टैलेंट एजेंसीज की कॉल आ गई कि भाई आप कौन हो, आपकी तस्वीरें जो हैं वो टेबल पे मतलब फैली हुई हैं एग्जैक्ट्स की, एंड यू नो दे आर चेकिंग यू आउट, सो व्हाट्स अप. तो अब यहाँ पे किसी का कोई जोर नहीं था. यहाँ पे आई जस्ट वॉक्ड इन, यू नो, डिड माय थिंग. आई डिडंट गेट इट. आई केम वेरी क्लोज टू इट apparently, but the fact that I made it that far, Guy Ritchie took notice and you know he was
giving comments के ऐसे ये वो, that was a huge win for me. That's obviously a big, तो really big deal. हाँ, man. so वो भी जिस तरह वो मेरे लिए एक ऐसी situation थी that I had no connections, I knew no one. I just walked in and I did it. I came close to it. So naturally it made me feel कि हाँ कुछ तो है मेरे अंदर यार कि यहाँ तक इतना करीब तो आएगी. मतलब इतनी बात हो रही थी कि विल स्मिथ के साथ स्क्रीन टेस्ट करके देखेंगे फलाना ये वो. मेन कंसर्न ये था कि I had never done anything. I never done anything on screen. So it was a big deal. So what if he can't do it in front of the camera when there's thousands of people around you and मतलब इतना बड़ा thousands तो नहीं है, but when there's such a big set and there's such big actors and all of that stuff and there's a time crunch and there's so much money involved, millions of people are supposed to watch you. Yeah, and millions of dollars of money that's also involved. Yeah. So eventually it was a big pressure thing for them, or probably that I just wasn't that great of an actor. No, but thank you for sharing that anecdote. But, I think that जिनको थोड़े से अगर डाउट शाउट्स हैं अब वो थोड़ा इसको देख के उनको नहीं डाउट्स इससे भी नहीं जाएंगे. मेरा बस काम है, जैसे जैसे मैं काम करता रहूँगा उसी तरह मेरी ये जो पिछले 2-3 गाने आए हैं, they really helped people see me for who I am. My album that came out, people who actively listen to अच्छा 2 फर्क चीज़ें हैं. एक इंसान जिसने मेरी एल्बम सुनी है जी, मैंने आपकी ब्लू बटरफ्लाई एल्बम सुनी और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मज़ा नहीं आया, तो ठीक है यार, सॉरी यार, आई ट्राइड माय बेस्ट. वर्सेस कभी कुछ सुना भी नहीं, कोई एफर्ट भी नहीं डाली, मुझे जाना भी नहीं, ना इंस्टाग्राम पे जाके कुछ देख लिया कि इंस्टाग्राम पे छोड़े वो तो तस्वीरें हैं ना, वो नहीं, बट आपका कंटेंट मैं लॉकडाउन में बड़ा एंजॉय करता रहा हूँ. जो फनी वीडियोस आप पोस्ट करते हैं उससे भी अंदाजा हो जाता है कि यार कुछ तो है ना बॉय में, मतलब यार शुगर तो लगा रहे हैं.